welcome my dear friends. This is the next lecture of defects in crystals. In previous video we did talk of what a defect is or imperfection is. Then we talked about the stoichiometric type of defects. This is the second lecture of defects in which we'll be talking about non-stoichiometric defects, non-stoichiometric point defects in fact. So what they are, let's have a look. So अगर आपके पास एक crystal है, if you have a crystal AB, so it's having a ratio of cation and anion. I told you many a times that you take anion A as cation, you take B as anion. So if you have a crystal AB and it's having a ratio, suppose 1:1. Now before defect and after defect, it becomes AB2 or A to B. Means the ratio changes, it becomes 1:2 or it becomes 2:1. This is basically after defect. Such a defect is called as non-stoichiometric defect, non-stoichiometric point defect. So we can simply say that before and after the defect, if the stoichiometry of the compound or the crystal changes, we call it non-stoichiometric defect. So we can write here, if stoichiometry of a crystal changes after the defect is created, so it's called as non-stoichiometric point defect. Non-stoichiometric point defect. I hope you understand it. So before defect, the crystal was having a ratio 1:1, but after the defect, its ratio changes. It becomes 1:2 or 2:1. So this is called as a non-stoichiometric point defect. Now, how it can occur? This can occur either by metal excess. So two types. Number one is metal excess defect. Or number B is metal deficient defect. Now what is metal excess defect? In metal excess defect, this occurs, this arises due to anion vacancy. This is important. This arises due to anion vacancy. मतलब एक क्रिस्टल में क्या होता है, एक क्रिस्टल में एनाइन की वैकेंसी हुआ करती है, तो उस वजह से मेटल्स जो है वो एक्सेस बनते हैं. दैट्स कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये बनता है बिकॉज ऑफ एनाइन वैकेंसी. हाउ एनाइन वैकेंसी टेक्स प्लेस, लेट्स हैव अ लुक. सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल है, वी हैव एक्चुअली अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल. व्हेन दिस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज पुट इन सोडियम वेपर्स, सो इसमें जो है डिफेक्ट डेवलप होता है. कैसे डिफेक्ट होता है? देखिए, हमारे पास एक सोडियम क्रिस्टल है, सपोज इट्स प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, जो है प्लस माइनस प्लस माइनस. सो क्या होता है कि ये NaCl आयन्स है इस क्रिस्टल में. आप इसको डालते हैं इन व्हाट वेपर्स, इन सोडियम वेपर्स, Na वेपर्स. तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे एनाइन है, दिस डिफ्यूजेस, ये डिफ्यूज होता है एंड मूव इनटू द सरफेस. जब ये जो है, ये आपका जो एनाइन है, दिस मूव्स टू सरफेस. जब ये सरफेस पे जाता है, वहां पे ये क्लोराइड जो है इस सोडियम को ऑक्सीडाइज कराता है. ऑक्सीडाइज की वजह से जो है ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन. दिस सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+ एंड देन बिकम्स NaCl एट द टॉप, एट द सरफेस. नाउ जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस ऑक्यूपाइज व्हाट, the position here which is missed by the anion. तो क्या बनेगा? It becomes plus, it's minus, it's plus, it's minus, it's minus, it's plus, then it's again plus here. This is the vacancy creator. This is plus, this is minus, this is plus, this is minus. जो यहाँ पे vacancy create हुई, किसकी? इस anion की, suppose क्लोराइड की. ये occupy करता है ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लॉस किया. So this electron occupies this position to maintain the electrical neutrality. This effect is known as मेटल एक्सेस डिफेक्ट. क्यों? क्योंकि मेटल ज़्यादा होंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मेटल्स थे, 1 2
3 4 5 6, एनाइंस भी 6 थे, 1 2 3 4 5 6। अब मेटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 मेटल फिर भी है, लेकिन एनाइंस जो है वो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। सो दिस इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई, ये एनाइन की वैकेंसी क्रिएट हुई, तो दिस क्रिएट बाय एनाइन वैकेंसी, एंड जो एनाइन वैकेंसी बन गई है दिस इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। ये जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एनाइन वैकेंसी जो है ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, anion vacancy occupied by electron is referred to as F center. These are called as F centers. These are called as F centers. I hope you understand it. F centers. What is F? It's a German word. So F जो है, F comes from a German word that's called as Farbenzenter. Farbenzenter, which means it color giving. Color, because it imparts color to the crystal. It imparts color to the crystal. So sodium chloride का color जो है that was white or colorless. So now after the defect is created, it becomes yellow in sodium vapors. So color has changed because of this trapped electron, because of this electron which occupies the vacancy, anion vacancy. It's called as F center. That is the German word Farbenzenter, which means color because it imparts color to the crystal. Such a defect we call it as metal excess defect, and this occurs because of anion vacancy. I hope you understand it. In the similar way, अगर आप लेते lithium chloride crystal, LiCl crystal, and you put it in lithium vapors, तो जो color lithium chloride का बनता है that is pink because of F centers. Similarly, अगर आपके पास potassium chloride crystal है, you put it in potassium vapors, the color was found to be violet. And this all is because of F centers. And this is because of F centers. F center metal excess defect है. F centers are basically the electrons trapped or occupying the anion vacancy. So that's called as F center. उसी की वजह से कलर्स आते हैं. This type of defect is basically metal excess defect, but this arises because of anion vacancy. ये एक है. And this metal excess defect can also arise because of extra cations. So we can write here metal excess defect can also occur. Metal excess defect can also occur due to the presence of extra cations. Due to the presence of extra cations in crystal. So crystal में extra cations होंगे, जिसकी वजह से इसमें metal excess defect हो सकता है. For example, आपके पास एक zinc oxide crystal है, it's white in color, ठीक. लेकिन आप क्या करते हैं, आप बेसिकली जब इसको हीट करते हैं, ये जो zinc oxide crystal है इसका कलर चेंज होता है, it becomes yellow. तो इसमें डिफेक्ट आता है. क्या डिफेक्ट? नॉन स्टाइकोमेट्रिक टाइप डिफेक्ट. हाउ दिस इज ट्रू आप देख सकते हैं. तो आप यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ, वो ये कि अगर आप देखेंगे इसमें कितने कैटाइन्स थे, इसमें 6 कैटाइन्स थे, 6 एनाइन्स थे, रेशो वाज 6:6. बस इसमें कितने हैं अब? इसमें हैं 6 कैटाइन्स, बट इसमें हैं 5 एनाइन्स खाली. सो रेशो चेंजेस. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ नॉन स्टाइकोमेट्रिक टाइप डिफेक्ट. नाउ एक्स्ट्रा कैटाइन की वजह से ये डिफेक्ट हो सकता है. I told you हमारे पास zinc oxide crystal है, that's white in color, but when once you heat it becomes zinc oxide but yellow. Why this is so? This is because of metal excess defect. कैसे? जब आप इसको हीट करते हैं, small part of zinc जो है zinc oxide वो convert होता है by heating into Zn2+ ions and half of oxygen plus electrons. तो होता क्या है, जब ये crystal आपके पास था crystal, तो surface में जो available था zinc oxide that goes converted into what? जिंक आयंस एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस चला जाता है. वंस ऑक्सीजन गैस निकल जाता है तो जिंक आयंस जो है, सपोज यहाँ पे प्लस माइनस है, इट्स माइनस प्लस माइनस प्लस, इट्स प्लस माइनस. जब जिंक ऑक्साइड यहाँ पे थोड़ा सा था, दैट गेट्स डिकम्पोज टू जिंक आयन एंड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन चला गया है, एस्केप्स एज गैस, बट लेकिन जिंक आयन जो है वो वहीं पे रहेगा. दिस जिंक आयन
this zinc ion moves into the crystal and occupies the interstitial site. It occupies the interstitial site. जो electrons इसने loss किए, ये वाले electrons, so they go into the interstitial site. और ये जो electrons loss किए, ये भी जाते हैं into the next neighboring interstitial site. So these electrons also went into the next neighboring interstitial site. So this is a defect which is caused because of the extra cations now. अगर आप देखेंगे एक cation 2, 3, 4, 5, 6, anion भी 6 है इसमें. अब सरफेस जिंक ऑक्साइड जो वो डिकम्पोज हुआ है तो उसका जो जिंक आयन है वो मूव करता है इनटू द क्रिस्टल. सो वहाँ पे 7 कैटायंस हुए लेकिन एनायंस 6 ही हैं. टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करते हैं, फिर इसी की वजह से जो है कलर चेंज होता है. सो द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन this interstitial site, they are responsible for color. They are responsible for color. So this is a defect which is known as metal excess defect, and this occurs because of the presence of extra cations. So इस तरीके से जो है ये defect बनता है. So we talking about one thing, that is metal excess defect जो है, that's a non-stoichiometric type defect. कैसे होता है? Because of anion vacancy. I told you like this, उसमें F centers बनते हैं. और दूसरा क्या है? Because of extra cations. वो जिंक ऑक्साइड की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है. अब मसला ये है कि फार्मूला क्या बन सकती है? फार्मूला ऐसे बन सकती है जिंक ऑक्साइड 1 - x, विच मीन्स ये पहले जिंक 1 था, ऑक्सीजन भी 1 था, सो रेशो वाज 1:1. बट अब ऑक्सीजन चला गया तो ऑक्सीजन कम पड़ गया, इट बिकम्स 1 - x. सो जब 1 - x बन गया तो कितना ऑक्सीजन चला गया, दैट मार्क्स द वैल्यू ऑफ x. सो उस तरीके से जो है कन्फिग्रेशन, ये जो स्टाइकोमेट्री है वो चेंज हुई है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज व्हाट? नॉन-स्टोइकोमेट्रिक टाइप डिफेक्ट. नाउ अब हमारे पास एक और बात है कि नेक्स्ट इज दिस मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. सो वी हैव नंबर सेकंड. आई टोल्ड यू we are having two types. Number one was metal excess defect and number second is what? Number second is metal deficient. So number B हम लेंगे अब metal deficient defect. Metal deficient defect. So what is metal deficient defect? Metal deficient defect वो वाला defect stoichiometric defect है नंबर B, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल का है वो वेरिएबल है, वो चेंज करता है. सो दिस ऑकर्स इन क्रिस्टल्स. This occurs in crystals in which metal exhibits more than one oxidation state. मतलब वो वाला डिफेक्ट जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का जो है वो वेरिएबल है, वो एक से ज़्यादा दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इट शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. उनमें जो है ये डिफेक्ट पाया जाता है, दैट्स मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रिस्टल है FeO, आयरन ऑक्साइड का रेशो आप देख सकते हैं एक्चुअली 1:1, बट इट इज नॉट एक्चुअली 1:1. द रेशो इज एक्चुअली Fe. It exists actually FeXO. So X varies between 0.93 to 0.96. So why is it not 1? Why is it not 1? The reason is some of the Fe2 plus ions changes to or converts to Fe3 plus ions, जिसकी वजह से आपका जो Fe2 plus है वो कम पड़ता है. That becomes 0.93 to 0.96. जो इसमें बचता है 0.04, that's converted to Fe3 plus ions. I hope you understand it. So वो वाले क्रिस्टल्स जिनमें मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा दिखाता है उनमें मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होता है. आप सीधे देखेंगे कि आयरन आप एज्यूम करते हैं ये 1 है, बट इट्स नेवर 1, इट्स एक्चुअली लेस देन 1. सो मेटल जो है वो डेफिशिएंट पड़ गया है. सच ए डिफेक्ट वी कॉल एज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. इट्स अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक टाइप डिफेक्ट. ठीक. Similarly, we have for example नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे. हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है. सो इट एज्यूम्स दैट इट्स 1:1. कॉपर 2 + 1 है. अब कॉपर प्लस है, बट इट इज कॉपर
XO because copper जो है it occurs in two oxidation states +2 and +1. So they interchange. That's why the copper atom जो है वो कम पड़ते हैं. It's 1 - X. It's less than 1. So this is a defect which is called as a non-stoichiometric type defect. So metal deficient defect यही होता है कि वो वाले डिफेक्ट्स जिनमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 1 होता है उसमें ये वाला डिफेक्ट आता है. दैट्स मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. एग्जांपल मैंने आपको दे दी है आयरन ऑक्साइड की, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेशो शुड हैव बीन 1:1 बट रेशो इज नॉट 1:1. इट इज एक्चुअली X:1. दैट इज 0.93 to 0.96. It's not 1, it's less than 1. Why it is less than 1? Because some of the Fe2+ ions actually change to Fe3+ ions. That's why it's less than 1. Similarly, I have given one more example, that is copper oxide. It assumes to be 1:1, but it's not actually 1 here. It is less than 1 because some of the copper 2+ ions changes to copper plus ions. So I hope you understand it. Now, how can you find the percentage of these ions in this particular crystal? How can you find the percentage of these ions? So let's have a look at some problem. So question is, find percentage of Fe2+ and Fe3+ ions in Fe0.90. So इस क्रिस्टल में कितना परसेंटेज Fe2+ है और कितना परसेंटेज जो है Fe3+ है, ये आपको निकालना है. सो व्हाट यू विल डू इज, आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज द फ्रैक्शन इनटू होल नंबर. ये फ्रैक्शन है तो फोल नंबर करेंगे, तो इट इज इक्वल टू Fe9O10. अब मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, ये बनेगा 9, ये बनेगा 10, सो इट बिकम्स Fe9O10. नाउ लेट Fe2+ बी. Fe2+ जो है ये आप लेंगे X. ऑब्वियसली Fe3+ कितना होगा फिर, दैट विल बी 9. तो टोटल है 9 में से आप X काट लो तो वो बचेगा क्या, Fe3+. सीधी सी बात है. आपने ये जो आयरन यहाँ पे है ये आयरन Fe2+ भी है, ये आयरन Fe3+ भी है. टोटल आयरन इज 9. आपने आयरन 2+ ले लिया है X, तो Fe3+ कितना बचेगा, टोटल 9 है, 9 - X इज Fe3+. नाउ बैलेंस द चार्ज. अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे कैसे. आयरन जो है अब 2 है, +2 +3. अब +2 कितना है, X है, तो इट इज 2 times X प्लस 3+ कितना है, 9 - X मल्टीप्लाई 3. ये X है, मल्टीप्लाई कीजिए ये चार्ज, प्लस ये 9 - X है Fe 9 - X है, मल्टीप्लाई कीजिए 3 प्लस. अब आयरन तो आ गया 2, ऑक्सीजन नंबर होता है -2, मल्टीप्लाई ये कितने हैं 10, तो इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो इज इक्वल टू 0. सो यू आर हैविंग चार्ज बैलेंस. जैसे आप निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसा ही करना है. किसी भी एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, सो यू आर बेसिकली डूइंग सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट. सिंस द चार्ज इज 0 तो इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी वही करना है. आयरन का ऑक्सीजन +2 है, मल्टीप्लाई ये कितने हैं, X है. आयरन का ऑक्सीजन नंबर +3 है, लेकिन ये कितने हैं, 9 - X है, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए. ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, मल्टीप्लाई 10 कीजिए, तो इट बिकम्स 0 बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. नाउ दिस इंप्लाइज आपका जो ये है, ये बनेगा 2X, ये बनेगा 9 3s are 27 माइनस 3 times X माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो ये बनेगा आपका इंप्लाइज करके आपका क्या बनेगा, 3 में से आप ये 2 काटो, ये बनेगा -X, 27 माइनस 7 आएगा, 7 - X इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज आपका जो X है वो आएगा 7. जब X 7 आएगा मतलब आपके जो Fe2+ आयंस है वो कितने हैं, 7. So this implies Fe2+ कितने हैं, 7. This implies percentage of Fe2+ कितना होगा, that is 7 तो है. इसका टोटल कितने हैं, 9. टोटल 9 है, आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 9 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 100. So this becomes equal to 77.7%. तो 77.7% जो है that is equal to Fe2+. Therefore percentage of Fe3+ कितना होगा, that is 100 minus 77.7, that is equal to 22.3%. I hope you understand it. इस तरीके से जो है ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड JEE. एक और क्वेश्चन हम लेंगे, we'll take one more question. क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे, find percentage of copper 2+ and copper plus in Cu 1.50.
अब Cu 1.5O में क्या परसेंटेज है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमूव द फ्रैक्शंस, Cu 1.5O जो है इट इज इक्वल टू Cu 15O10, आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, ये बनेगा 15 और ये बनेगा 10. So you have removed the fractions now. Now the point is, what you will do is you will basically let copper 2 plus, क्योंकि इसमें 2 है कॉपर, ये कॉपर जो है ये कॉपर 2 प्लस भी हो सकता है, कॉपर प्लस भी हो सकता है. So let copper 2 plus be X. Therefore कॉपर प्लस क्या होगा, फिर टोटल कितने हैं 15 में से X काट लो, ये बनेगा आपका कॉपर प्लस. So now balance the charge. Balance the charge we have. कैसे करेंगे, जैसे ऑक्सीजन स्टेट करते हैं आप. सो यू हैव हियर x मल्टीप्लाई दिस 2, मतलब 2x प्लस 15 माइनस x मल्टीप्लाई 1, सो 15 माइनस x मल्टीप्लाई 1 प्लस O का कितना ऑक्सीजन नंबर है, -2 मल्टीप्लाई 10, -2 मल्टीप्लाई 10, इट इज न्यूट्रल इज इक्वल टू 0. सो इट इज 2x प्लस 15 माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. 2 में से a काटो तो x बनेगा, 15 में से 20 काटो तो 5 बनेगा, इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 5. मतलब ये कि इट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू Cu2 प्लस, बिकॉज Cu2 प्लस आपने x रखा था तो ये 5 आया. क्लियरली जो है परसेंटेज, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ Cu2 प्लस विल बी इक्वल टू, दैट इज 5 तो है, डिवाइड बाई टोटल कितने थे 15 मल्टीप्लाई 100, ये 5 निकला आपको कॉपर 2 प्लस, तो टोटल कितने थे, टोटल 15 थे, दैट इज हियर. तो आपने मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो ये बनेगा आपका 33.3%. और कॉपर प्लस कितना होगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कॉपर प्लस दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 33.3, दैट इज इक्वल टू 66.67%. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. इस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. This is how you can solve problems, by finding how many number of what is the percentage of these ions in that non-stoichiometric compound. So this was the defect called metal deficient defect. I hope you understand it. If you like my videos, please do not hesitate to share and subscribe my channel. Like it, comment if you feel any difficulty, if you feel anything which doesn't make you understand. So if you want me to change my way of delivering, so you can comment and share it, like it. Please do subscribe. I'll come up with more such videos. Keep watching. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.